Good morning, students. With new chapter, medieval architecture. You know, in your 3 chapters, you have read about the so many rulers, and some of them are invaded who came in India and ruled over the India, like Mughal dynasty, Afghan rulers, and some others Indian rulers who ruled over India. So in this time, in that time, so many buildings formed. Some are religious buildings and some are secular buildings. Religious means like temples, mosque, and prayer halls. And secular buildings means palaces, bawli, havelis, and others type. But some having tall structure, some having broad structure. So many buildings are different in so many types. So in this chapter we will discuss about these architecture and these type of buildings. So first we will discuss about the based on their functions. Historical monuments can be divided into religious and secular buildings. As you know, religious buildings means include temples, mosque, prayer halls, and other hand secular buildings include fort, palace, bawlis, and havelis, irrespective of their type. Historical monuments provide valuable information to reconstruct history. The architecture that developed during the medieval period in India reflect diversity. Turkish invasion. Who were Turkish? Nadir Shah was the Turkish invaders who came in India, added new elements to existing architectural styles of India. This gave birth to a new style of architecture that was a fusion of Indo-Islamic features. Indo means Indian culture plus Islamic cultures को mix करके उसने एक new Indo-Islamic features में उसने architectures को formed कराया. And what were the features of medieval architecture? Buildings constructed during the early medieval period include the massive fort, palaces, temples, towers, havelis, bawlis, and many other magnificent structures. What do you mean by bawlis? Yes, bawlis means public wells. The public wells Mughal period में formed हुए, that is called bawlis. And many other magnificent structures, temple during this period were constructed in 3 primary styles of architecture: Nagada, Dravida and Vesara. जो temples हैं आपके वो mainly 3 styles में formed होते हैं. So what is Nagada? Nagada styles. The Nagada style architecture has its origin in the structural temples built during the Gupta period. जो गुप्ता पीरियड हुआ, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त, तो उनके टाइम में जो टेम्पल्स फॉर्म्ड हुए वो किस स्टाइल में थे? नगाड़ा स्टाइल में. और नगाड़ा स्टाइल क्या होता है? इट वाज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया. अभी भी आपके नॉर्थ इंडिया में आपके रीजन में जितने भी टेम्पल्स बने हुए हैं वो नगाड़ा स्टाइल में ही बने हुए हैं. द टेम्पल्स बिल्ड इन नगाड़ा स्टाइल कंसिस्ट ऑफ 2 buildings. द मेन श्राइन विच इज टॉलर एंड एन एडजॉइनिंग शॉर्टर वन. अभी भी आप देखते हो टेम्पल्स जो आपके रीजन्स में होंगे वो इसी स्टाइल में होते हैं. एक टॉल स्ट्रक्चर होता है, देन उसके साइड में कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स स्ट्रक्चर्स होते हैं. विच इज टॉलर एंड एन एडजॉइनिंग शॉर्टर वन. और द मंडपा. मंडपा में जो उसके साथ में एक हॉल टाइप बनाया जाता है. द शेप ऑफ शिकारा. शिकारा मीन्स टॉप. जो उसका टॉप होता है, जो उसकी चोटी बनाई जाती है टेम्पल्स की, वो कैसी होती है? इन अ कोन शेप में होती है. is the main difference between the 2 buildings structures. This is the structure of Nagada style. ये नगाड़ा स्टाइल है टेम्पल्स का. ठीक है, इसमें एक टॉल है, देन आफ्टर दैट उसके साथ कुछ शॉर्टर हैं और कुछ आपके राउंड रेक्टेंगुलर शेप में जो हॉल टाइप फॉर्म किए जाते हैं. दिस इज कंदरिया महादेव टेम्पल, खजुराहो. ये खजुराहो टेम्पल्स है. तो मोस्टली जो आपके नगाड़ा स्टाइल्स में टेम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं? सम ऑफ द टेम्पल्स एट खजुराहो, Parshvanath temple, Vishwanath temple, Kandariya Mahadev temple were built in this style of architecture. Other examples include Lingaraja, Mukteshwara temples in Bhubaneswar, Sun temple in Konark,
and Jagannath temple in Puri. Can anybody of you tell me why this temple is called Sun Temple? In Konark, why it is called Sun Temple? Because the shade of this temple never formed. जो शेड होती है, you know कि सभी जो थिंग्स होती हैं उनकी शेड बनती है, परछाई बनती है, छाया बनती है, बट जो आपका सन टेम्पल है इसीलिए उसका नेम सन टेम्पल है कि उसकी कभी शेड नहीं बनती, बिकॉज सन हमेशा उसके टॉप पे ही होता है, उसकी कभी शेड नहीं बनती. सो इट इज कॉल्ड सन टेम्पल. नाउ नेक्स्ट स्टाइल ऑफ द टेम्पल्स इज द्रविड़ स्टाइल. द्रविड़ स्टाइल, द्रविड़ मीन्स इन साउथर्न इंडिया. जो साउथर्न इंडिया में टेम्पल्स फॉर्म्ड होते हैं, इट इज इन द स्टाइल ऑफ द्रविड़ स्टाइल. द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द 17th century, mainly in southern India. The most common characteristics of this style is the pyramidical elevation of the tower. The temples of Dravidian architecture consisted of 4 main parts. Gopuram means जो गेट होता है, एंटर करने के लिए जो गेट होता है उसे वो गोपुरम बोलते हैं. मंडपा जो पिलर्ड होते हैं, जो प्रेयर हॉल में एक पिलर्स बने होते हैं वो आपके मंडपा हैं. एंड गर्भगृह, स्क्वायर चैम्बर मीन्स कि जहाँ पर जो मूर्ति होती है उनकी, जो जिसे वो वहाँ पर रखते हैं, तो जो वो जो मेन चैम्बर है, इट इज कॉल्ड गर्भगृह. चीफ डेटी वाज केप्ट. एंड द प्रदक्षिणा पाथ, circumambulatory passage, and these temples also featured multi-storied pyramid-shaped towers called vimanas. उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह से मल्टी स्टोरी टाइप में वो उसको फॉर्म्ड करते हैं, पिरामिड शेप में. द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द चोला एंड पल्लवा डायनेस्टीज. चोला और जो आपकी पल्लवा डायनेस्टी है, राजेंद्र चोला, ठीक है, तो उनकी डायनेस्टी में जो टेम्पल्स फॉर्म्ड हुए हैं, दीज आर इन द्रविड़ स्टाइल. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर इंक्लूड शोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल एंड रथ टेम्पल. दीज आर इन द स्टाइल ऑफ द्रविड़ स्टाइल. एंड वन अदर ऑल्सो द स्टाइल फॉर्म्ड इन विच नगाड़ा एंड द्रविड़ स्टाइल मिक्सड अप. जो दोनों को मिक्स करके एक न्यू स्टाइल भी फॉर्म किया गया, इट इज Veshara. This is the Shore temple of Mahabalipuram, and this is the Vesara style of temples. The Vesara style of architecture developed in the Deccan area. ये डेक्कन एरिया में, डेक्कन एरिया यू नो इन साउथ इंडिया में आपका जो डेक्कन एरिया है मीन्स कि आपका कर्नाटका और सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये एक जो कंप्लीट एरिया है ये आपका डेक्कन एरिया में कन्वर्ट होता है. It was a hybrid style which combined the features of both the Nagada and the Dravidian style of temple architecture. दोनों को मिक्स करके, जो दोनों का स्टाइल है उन दोनों को मिक्स करके एक न्यू स्टाइल फॉर्म किया गया. इट इज कॉल्ड वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. चालुक्य, होयसल, राष्ट्रकूटा आपने रीड किया है ना सेकंड चैप्टर में, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में राष्ट्रकूटा. तो राष्ट्रकूटाज ने जो टेम्पल्स फॉर्म कराए वो वेसारा स्टाइल में फॉर्म कराए. कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स इन दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. एंड देन न्यू स्टाइल विच ओरिजिनेटेड बाय मुस्लिम रूलर्स, इट इज इंडो इस्लामिक. इंडो इस्लामिक मीन्स इंडियन आर्किटेक्चर प्लस मुस्लिम आर्किटेक्चर, दोनों को मिक्स करके उन्होंने एक न्यू आर्किटेक्चर को फॉर्म किया. The advent of the Turks in the 13th century saw the beginning of Indo-Islamic architecture in India. This style of architecture borrowed certain elements of the Indian architecture, such as courtyards surrounded by colonnades and balconies with ornate brackets. The architectural style brought by the Turkish rulers includes dome, मीन्स कि वो मॉस्क्यू फॉर्म करते थे, तो मॉस्क्यू में क्या डॉम होता है ना, तो डॉम्स बनाना, आर्क बनाना, मोटिफ्स बनाना, मोजैक्स, मेहराब्स एंड मिनारेट्स. मिनारेट जो लंबी लंबी वो मीनारे, जैसे कि आपने देखा है ना ताजमहल में, वो उसके साइड में लॉन्ग स्ट्रक्चर जो फॉर्म्ड है वो मिनारेट्स जो होती हैं. डॉम बनाना, मिनारेट्स, मोटिफ्स होता है मीन्स कि उनके ऊपर कलाकारी करना.
मोज़ेक, उनके अंदर छोटी छोटी फोटोज को उसके अंदर सेट करना, और मेहराब मीन्स कि बहुत ही लॉन्ग वे में गेट फॉर्म करना। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इंडो इस्लामिक कल्चर में आते हैं। मैनी ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया and their influences were also reflected in this new form of architecture. Persian influence can be seen in the tomb architecture of the medieval period. The Mughals introduced gardens around the tomb. This was based on a Persian design where the garden was divided into 4 parts with the help of walkway or flowing water. फोर्ट वर अनदर की फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। फोर्ट बनाने स्टार्ट किए। दिस पीरियड विटनेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्ड फोर्ट्स टू सेफगार्ड अगेंस्ट एनिमी अटैक्स। इंडियन इन्फ्लुएंसेस कैन बी सीन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अकबर्स फोर्ट एट आगरा शोज ट्रेसेस ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस फ्रॉम द गुजरात एंड बंगाल रीजन्स। Besides valid structures, magnificent forts with ornate designs were built, such as the Lahore fort that included the Sheesh Mahal and the Nolakha Pavilion. इसमें जो अकबर था, कि अकबर ने दीन इलाही जो रिलीजन था वो भी उसने फॉर्म किया था, और साथ ही उसने जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसने अपने कुछ फोर्ट्स में भी यूज़ किया था। तो फीचर्स क्या थे? फीचर्स ऑफ मिडवल आर्किटेक्चर। जो हमारा मिडवल आर्किटेक्चर है जो चोला एम्पायर में गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होता है, उसके फीचर्स क्या हैं? मेन उसके फीचर्स क्या हैं? तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ आर्क, डोम, बीम, बालकनीज। बिकॉज मोस्टली जो मुस्लिम रूलर्स आगे थे तो उन्होंने आर्क बनाना, डोम बनाना, बीम और बालकनीज, झरोके टाइप जिनको बोलते हैं, वो मुस्लिम्स ने ही इंट्रोड्यूस किया था। यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, ब्रिक और स्टोन कवर्ड विद प्लास्टर एज बिल्डिंग मटेरियल्स। लाल पत्थर जिसको बोलते हैं, सैंडस्टोन, इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। डेकोरेटिव कार्विंग्स, फ्लोरल एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स एंड यूज ऑफ कैलीग्राफी। कि जो ताजमहल है, ताजमहल में भी पेट्राड्यूरा, उन्होंने ये अपनी टेक्निक यूज़ की थी कि जो स्टोन है, स्टोन को कट करके उसके अंदर कलरफुल स्टोन को उन्होंने पेस्ट किया। ये ताजमहल के ऊपर उन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्म किए। कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल राइटिंग में कुछ राइट करना। एनग्रेव्स ऑफ कुरानिक वर्सेस ऑन द वॉल्स, जो इन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्म कराए, चाहे वो मॉस्क हों, कुछ भी हो, फोर्ट बनवाए हैं, तो उनके ऊपर जो कुरान की आयतें होती हैं वो इन्होंने रिटन की हैं। सो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये ब्रिटिशर्स, ये मुस्लिम रूलर्स ने स्टार्ट किया था।